Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is external control of administration. तो external हम दो controls होते हैं administration के, हमने last time पढ़ा था. Two types we have studied. That first is internal control and second is external control. तो internal control के अंदर certain techniques हमने study की थी. आज हम external control को देखेंगे. तो external control it is exercised by the agencies which operate outside the administrative machinery. It may be considered from four main standpoints, namely of the legislature, executive, judiciary and of public. अब पब्लिक जो है वो कैसे अकाउंटेबल बनाती है जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, या जो ब्यूरोक्रेसी है या सिविल सर्वेंट्स हैं उनको, या जुडिशरी कैसे उन्हें अकाउंटेबल बनाती है, एग्जेक्टिव कैसे अकाउंटेबल बनाती है, लेजिस्लेचर कैसे अकाउंटेबल बनाती है. तो सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल को देखते हैं कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल किस तरह से होता है. देन हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल द सिविल सर्वेंट्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस. लेजिस्लेचर इनैक्ट लॉज, authorizes administrators to engage in quasi legislative and quasi judicial activities, appropriate funds for all the administrative programs and determines the general outlines of administrative organization and procedure. ठीक है, ज़ाहिर है कि लॉज पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं, तो लेजिस्लेचर का एक रोल है एग्जेक्टिव को कंट्रोल करने में. तो एग्जेक्टिव के लिए जितने भी लॉज बनते हैं उनके फंक्शंस से रिलेटेड, उनकी पावर से रिलेटेड, दीज आर इन द हैंड ऑफ लेजिस्लेचर. सिमिलरली जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें एग्जेक्टिव जो है इट इज़ अंडर लेजिस्लेचर because it is parliament that demarcates about the budget of the country. So when the executive branch seems to be getting out of hand, therefore the legislature has many ways to put administrators in their place. And what are the techniques? There are certain techniques that are followed by the legislature, and these techniques are: first is questions. How questions control the executive? The first hour of every sitting of legislature is known as question hour. We all know that in parliament there is a question hour. This time is allowed for asking and answering questions. Every legislators, after giving due notice, are entitled to put questions and supplementary questions to the ministers about the state of public administration. ठीक है, बिकॉज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जेक्टिव इज आंसरेबल और अकाउंटेबल बिफोर लेजिस्लेचर. सो देयर इज क्वेश्चन और इन द लेजिस्लेचर और इन द असेंबली वेयर लेजिस्लेचर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स. The ministers are bound to answer these questions. The purpose of questions is to elicit information on the working of administrative departments. Questions are also used to expose the failures and pitfalls of administration and redress the grievances of citizens. Citizens की जितनी भी शिकायत होती हैं, because the representatives in legislature are actually the representatives of public, so they have to redress the grievances of citizens. And for redressing grievances of citizens, they ask questions from the ministers about their failures and about their pitfalls of the administration. The questions exercise a very healthy check on administration. The question hour has been described as such is a searchlight turned on the activities of administration. In short, it keeps the civil servants on his toes and compels him to be alert. So as Lord Loswell says, not only to keep the administration up to the mark but to prevent growth of bureaucratic arrogance. तो लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल करती है, उनसे क्वेश्चंस करती है, हर चीज़ के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है. तो बदले में एग्जेक्टिव क्या होती है, वो ब्यूरोक्रेट्स पर नज़र रखती है. क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स की एक्टिविटीज़ ठीक होंगी तो पूरी जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसकी एक्टिविटीज़ ठीक होंगी. तो उन एक्टिविटीज़ पर जब सवालात पूछे जाते हैं तो वो जो एग्जेक्टिव ब्रांच है वो ब्यूरोक्रेट्स को अपने चेक में, अपने कंट्रोल में रखती है. सेकंड इज़ रेजोल्यूशंस एंड मोशंस. रेजोल्यूशंस एंड मोशंस क्या होती हैं? दीज आर ऑफ टू काइंड्स. फर्स्टली
those whose object is to censure a particular minister or government as a whole. Secondly, those which recommend some course of action to be adopted. ठीक है, अब कुछ रेजोल्यूशंस एंड मोशंस होती हैं जिसमें या किसी मिनिस्टर को सेंश्योर कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, या फिर जो पूरी कैबिनेट है उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाता है, या फिर किसी इजलास को मुलतवी करना। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। द फॉर्मर लीड्स टू डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री। तो पहली जो इसका ऑब्जेक्ट है दैट इज इंश्योर अ पर्टिकुलर मिनिस्टर और द गवर्नमेंट एज अ होल, कि इसमें गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री को उसकी बैड परफॉर्मेंस पर डिसमिस कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं। द लेटर इज़ रिकमेंडेटरी, हैंस इट मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। Members of Parliament are entitled to pass resolution on matter of general public interest. They can move motion of the general matters, while adjournment motion for the matters of urgent public importance. The motion of censure or motion of no confidence are intended to censure the government और टू डिसलॉज द गवर्नमेंट। ठीक है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए होता है। और दूसरी मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट है, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पर कुछ जो पॉलिसीज़ हैं कैबिनेट की उनको डिले कर दिया जाता है, उसके लिए रेजोल्यूशंस पास कर दी जाती हैं, उनको डिले करे। इन द केस मोशन ऑफ सेंश्योर एंड नो कॉन्फिडेंस इज पास, द गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री हैज़ टू रिज़ाइन। तो क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर मोशन ऑफ सेंश्योर या नो कॉन्फिडेंस पास कर देती तो गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ता है। Third is debates and discussions. Debates and discussions, how they control the executive. Debates or discussions in the House constitute another important means for controlling the executive. Houses perpetually go on debating one thing or other. Discussions take place over every point of a bill or the budget. Every motion come under discussion in the House. The inaugural address of the President, the budget speech, introduction of the bill for amendment, introduction of new law or introduction of motion or adjournment motion or resolution provide opportunity for debates and discussions. ठीक है, पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं उनमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। मिनिस्टर्स की पॉलिसीज़ के ऊपर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं दैट अगर पॉलिसी ठीक नहीं है तो उस पॉलिसी को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, और अगर ठीक नहीं है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें मिनिस्टर्स के साथ साथ ऑब्वियसली पूरे सेक्रेटेरिएट का रोल होता है मिनिस्ट्री की। तो जो मिनिस्ट्री की सेक्रेटेरिएट होती है इट इज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर सिविल सर्वेंट्स। तो इस तरह से सिविल सर्वेंट्स को जो है वो अंडर कंट्रोल रखा जाता है थ्रू लेजिस्लेचर। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस। देन नेक्स्ट इज़ पासिंग लॉज। अब लॉज बनाकर लेजिस्लेचर जो है वो कैसे कंट्रोल करती है? बाय डिटेल्ड legislation. Legislature can control the activities of administration. Lawmaking is a primary function of the legislature. Various bills for the better administration are introduced, discussed and passed as laws by the legislature. The administration of country is conditioned by provisions of these laws. Then Great Britain. तो लेजिस्लेचर जो लॉज पास करती है ऑब्वियसली दीज लॉज आर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करेगी, उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी, उनकी जो सिविल सर्वेंट्स है उनके एथिक्स क्या होंगे, ये सारी लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट में की जाती है। इस तरह लॉस पास करके सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। देन कंट्रोल ऑफ एप्रोप्रिएशंस। Legislatures exercise the most decisive control over administration through their powers of appropriation. No money can be spent unless it is appropriated by an act of legislature. Legislature exercises control over the executive by controlling the purse. In democratic state, legislature is ultimate authority to sanction the rising and spending of public fund. No tax can be imposed or money can be spent without the approval of legislature. Money is allocated to various departments through appropriations which are approved by legislature.
So these are certain appropriations, just like rising of funds, spending of money, imposing of taxes. तो ये जो बिकॉज लेजिस्लेचर इज़ आल्सो नोन एज पर्स ऑफ द नेशन, तो थ्रू लेजिस्लेशन और फाइनेंशियल लेजिस्लेशन एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करती है. एंड नेक्स्ट इज़ ऑडिट एंड रिपोर्ट. Audit Constitution provides for Auditor General who is appointed by executives and he act as an agent of legislature. ठीक है, एक ऑडिटर जनरल होता है जो कि लेजिस्लेचर का एक एजेंट होता है, और जो मिनिस्टर्स को फंड्स वगैरह राइज किए जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ से वो उनका ऑडिट करता है. ठीक है, उनको उन पर चेक रखता है कि कौन से फंड्स कहाँ कहाँ स्पेंड हुए हैं, और उसे करप्शन से बचाने के लिए ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एनुअली एंड रिपोर्ट्स टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, ऑडिटर जनरल इन सब के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है उनके अकाउंट्स पर चेक रखता है. द पब्लिक अकाउंट कमेटी विच कंप्राइजेज ऑफ लेजिस्लेटर्स फुली स्क्रूटिनाइजेज द रिपोर्ट्स एंड रिव्यूज द फाइनेंशियल डीलिंग ऑफ वेरियस departments of the government. Legislature discusses the report of Auditor General and findings of Public Account Committee. Legislature के अंदर जो Public Account Committee है, and secondly जो Auditor General है who is the agent of Legislature, तो इनकी जो रिपोर्ट्स बनाई हुई होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट्स के ऊपर, तो इन रिपोर्ट्स को एनुअली रिव्यू किया जाता है. ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑडिटर जनरल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अप्रूव्ड बाय द नेशनल असेंबली. दिस इज़ सो सिंपल. दिस इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी हेडेड बाय अ सीनियर पार्लियामेंटेरियन विच रिव्यूज़ ऑल द स्पेंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सारी जो फंडिंग है, उनकी जो स्पेंडिंग है, उन पर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और जो ऑडिटर जनरल है वो फुल उन पर चेक रखता है. वो उन्हें स्क्रूटिनाइज करते हैं और उनकी एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ कमेटीज़ ऑफ लेजिस्लेचर. तो कमेटीज़ ऑफ लेजिस्लेचर जो लास्ट टेक्निक है, लेजिस्लेचर्स आर वाइडली बॉडीज़ and cannot meet for the whole year. Hence, they appoint committees of their own members who are specialists in their sphere of activity and keep constant watch over administration. Simple is that कि जो legislature है वो पूरा साल तो सेशन में नहीं रहती, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी पार्टीज़ रखी होती हैं. तो जो पार्टीज़ होती हैं उसमें कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रखते हैं, जस्ट लाइक टेक्नोक्रेट्स. पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑन, अब उन कमेटीज़ के नाम कौन कौन से हैं, ऊपर हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी को देखा. देन कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, petitions committee, committee on public service personnel, committee on administrative management are the examples of such committees. ये committees क्या करती हैं? They gather a lot of material, hear expert advices and frame conclusions. ठीक है, this is their function. Such conclusions which are formed in the form of recommendations which correct the tone of administration by improving efficiency and quality of work of civil servants. एंड सिंपल ये होता है कि ये उनकी जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर नज़र रखती हैं. कमेटीज़ आर दस राइटली एफिशिएंट मीन्स ऑफ इन्फोर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. While exercising the legislature's control over administration, there are many limitations on role of legislature. The legislature cannot exercise effective role due to its large size. Legislators are laymen. Their decisions are general and not technical. Majority members belong to ruling party and do not exercise control. Legislature is a tool in the hands of cabinet and most of its criticism is political, which is aimed at dislodging the government. एंड में इस पर जो क्रिटिसिज्म बनता है वो यही होता है कि जो लेजिस्लेटर होते हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं, और जो एग्जेक्टिव होते हैं, दे बोथ आर पॉलिटिकल, दे बोथ आर टेम्प्रेरी. तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फुल चेक रखें. तो क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं. हाँ, अपोजिशन का इसमें काफ़ी हद तक रोल होता है, लेकिन ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल करती है, और हमारी जो एग्जेक्टिव है वो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करती है.
तो जो नेक्स्ट कंट्रोल है दैट इज़ एग्जेक्टिव कंट्रोल। अब एग्जेक्टिव जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स को कैसे कंट्रोल करती है, ये हम देखते हैं इस लेक्चर में। एग्जेक्टिव को हम ऐसा ये भी कह सकते हैं कि चूँकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव, तो इसे इंटरनल कंट्रोल में भी हम शामिल कर सकते हैं एंड एक्सटर्नल में भी शामिल कर सकते हैं, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज़ अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, इनका सिलेक्शन का एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हम जो एग्जेक्टिव कंट्रोल को हम एक्सटर्नल कंट्रोल भी कह सकते हैं एंड इंटरनल भी कह सकते हैं, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्वेंट्स दे आर द पार्ट ऑफ आवर एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। तो एग्जेक्टिव कंट्रोल में अब क्या क्या होता है, इट मींस द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ एग्जेक्टिव ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। चीफ एग्जेक्टिव का कंट्रोल, ठीक है, हमारे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका कंट्रोल। दिस सिस्टम इज़ एक्सरसाइज बाय द प्रेजिडेंट इन द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज यूएसए एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्रोल करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें कौन कंट्रोल करेगा, प्रेसिडेंट। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एडमिनिस्ट्रेशन टू द पार्लियामेंट। द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स इन देयर टर्न एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर द सिविल सर्वेंट्स। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स पार्लियामेंट को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर, इट मीन्स दैट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स who are working under them, they hold the civil administrators accountable for carrying out their responsibilities. The cabinet under the chairmanship of prime minister review the working of departments of the government. तो जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट्स who in turn his who in his turn controls the whole administration through his agents like ministers, secretaries. They in their turn control the civil administration, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो कंट्रोल करता है अपने मिनिस्टर्स को, जिन्हें वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वहाँ पर सेक्रेटरीज कहा जाता है, वो अपने सेक्रेटरीज को कंट्रोल करते हैं, और सेक्रेटरीज जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो प्रेसिडेंट प्रोवाइड्स लीडरशिप टू एडमिनिस्ट्रेशन वाइल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in Pakistan, in United Kingdom, we can say that Prime Minister provides leadership to administration. Now what are the methods of executive control? Executive control के methods में कौन कौन से शामिल हैं? First of all, policy making. How policy making control or administrators. The chief executive along with his cabinet control the administration through policy making. All important policy decisions are taken by the cabinet in every country. The departments carry on their day-to-day business within the policies laid down by the cabinet. The cabinet is also held responsible for the proper implementation of policy, thus it controls the एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल ये है कि पॉलिसी बनाने में कैबिनेट का रोल होता है, तो कैबिनेट जो है वो पॉलिसी को बनाती भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, और वो उन पॉलिसीज़ के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड है बजटरी सिस्टम। बजटरी सिस्टम में आपने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सिंपल हमारी बजट जो है वो पार्लियामेंट में बनता है, और उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल होता है। तो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, वो कोई भी जो फंड्स हैं वो यूज़ करने के लिए, स्पेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और वहाँ से वो मिनिस्टर्स से अप्रूवल लेकर कोई काम करते हैं। वो कोई भी काम मिनिस्टर्स से अप्रूवल लिए बगैर नहीं कर सकते। एंड मिनिस्टर्स आर एग्जेक्टिव। It means that budgetary system is also a technique to control the civil servants के उनकी इजाज़त के बगैर, उनके अप्रूवल के बगैर वो कोई फ़ंड्स जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, और सारे किस किस को फ़ंड देने हैं, कहाँ कहाँ पर देने, ये सारा जो है ये हमारी एग्जेक्टिव ही करती है। तो थर्ड इज़ रिक्रूटमेंट सिस्टम। अब रिक्रूटमेंट सिस्टम में क्या होता है, सिंपल, द एग्जेक्टिव कंट्रोल works through the recruitment of public personnel. This is usually placed
in the hands of an independent recruiting agencies like Public Service Commission. The Public Service Commission works under the Constitution of State or the general principles of the government. The chief executive is free to appoint the higher civil servants. ठीक है, चीफ एग्जेक्टिव सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट कर सकता है, उनकी ट्रांसफ़र कर सकता है और उनको रिक्रूट कर सकते हैं. जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है उसका रोल होता है इन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कौन सा इदारा काम कर होता है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उनसे CSS का एग्ज़ाम भी लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं उनको, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग में सारे का सारा जो है वो एग्जेक्टिव का रोल होता है. लाइकवाइज द मिनिस्टर सेलेक्ट देयर ओन सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज एंड अदर पर्सन स्टाफ. तो मिनिस्टर्स के साथ मैंने आपको बताया था ना कि पूरा सेक्रेटेरिएट वर्क करता है. तो वो जो सेक्रेटेरिएट के जो मिनिस्टर सेक्रेटरीज होते हैं, मिनिस्टर्स खुद उनको अपने साथ सेलेक्ट करते हैं. Thus, they exercise full control over the administration of their respective department through their appointees. In Pakistan, Federal Public Service Commission is sole agency which recommends the names of candidates for appointment as civil servants in various departments, while the ultimate authority of the appointments rests in the chief executive and he controls the administration through recruitments. तो रिक्रूटमेंट्स में भी चीफ एग्जेक्टिव का रोल है और उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स में भी इनका रोल है, उनकी ट्रांसफ़र में उनका रोल है. नेक्स्ट इज़ स्टाफ एजेंसीज़. अब स्टाफ एजेंसीज़ क्या क्या हैं कि स्टाफ एजेंसीज़ में दे मेक अवेलेबल ट्रेंड एंड स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम मैनेजमेंट. In Pakistan, for example, such staff agencies as a Division of Service Management, Pakistan Planning Commission and Federal Public Service Commission exercise influence and indirect control over various line departments. They also play an important role in coordinating the policies and programs of other administrative agencies. ठीक है, ये जो हमारे प्लानिंग कमीशंस होते हैं, जो प्लान्स बनाते हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है इनके ऊपर, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर. ठीक है, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान्स जो बनते हैं. और उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि इनको रिक्रूट करती है, इनका ये भी एग्जेक्टिव का एक इदारा है. तो इनका एक इन्फ्लुएंस होता है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर. ठीक है, और ये पॉलिसीज़ जो है प्लानिंग कमीशन का कोऑर्डिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ की कोऑर्डिनेशन में. ठीक. एंड नेक्स्ट इज़ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स. एग्जेक्टिव ऑर्डर्स अब कैसे? एग्जेक्टिव ऑर्डर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एग्जेक्टिव कंट्रोल. द पावर ऑफ चीफ एग्जेक्टिव ऑफ इशूइंग ऑर्डर्स हैज़ बीन इंक्रीज ड्यू टू द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. Most of the laws made by the legislature are skeletal in character and empower the chief executive to apply them to the specific instances. This rule-making power delegated by the legislature enables the chief executive to control administration. पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि चीफ एग्जेक्टिव को एम्पावर किया गया कि वो इश्यूज़ जो ऑर्डिनेंस है वो इशू कर सकते हैं 3 मंथ के लिए. ठीक, जिसे मज़ीद 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है. तो जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती तो चीफ एग्जेक्टिव जो है वो खुद ही ऑर्डिनेंस इशू कर देता है. और द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर्स आर बोनाफाइड लेजिस्लेशन विच कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है, ये लीगल है, इन्हें नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता. वो जो भी अगर लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है वो अपने सेशन में नहीं होती तो वो पास कर देते हैं, वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर देते हैं और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है. और एग्जेक्टिव का कंट्रोल की एग्जांपल एक ये भी हम ले सकते हैं कि ज़ियाउल हक जब आया तो उसने जो करप्ट थे सिविल सर्वेंट्स थे उनको डिसमिस किया था. अबाउट 313 ऑफिसर्स डिसमिस हुए थे. और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अबाउट 1300 जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो स्क्रीनड आउट हुए और कुछ डिसमिस हुए और जिन पर करप्शन के केसेस थे. तो इस तरह से जो एग्जेक्टिव है उनके ऑर्डर्स ये क्या करते हैं, ये फुल कंट्रोल रखते हैं सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जुडिशल कंट्रोल को एंड देन पब्लिक कंट्रोल को.